another video और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया शॉकिंग आंसर सीक स्ट्रीट इंटरव्यू पाकिस्तान। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करिए। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया, आई डोंट लाइक इंडिया। We don't share very good terms with them, so I think we'll pass. What do you know about India? India? We grew up on Indian stuff. So. I grew up watching Indian drama series, so I know most about that. And Bollywood, I'm such a big Bollywood fan, so yeah, I have lots of love for India. Not all Pakistanis can say that, but I can because it's like basically my childhood, Indian, everything. Okay, who's your favorite Bollywood actress or actor? Shah Rukh Khan. I love him. Okay, do you remember any movie of Shah Rukh Khan? कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, जवान, the recent one. So you watch in Hindu language? Yeah. You understand? Yeah, Hindi and Urdu are really similar. Sometimes I actually mix both the languages because I watch so much Bollywood stuff. That's why. Okay, lovely. Have you ever met Indian people in Pakistan? Oh no? I haven't. What about you? I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. Like even as a kid, that was one thing I really wanted, just to visit India. And then I grew up on all Indian shows. Like Star Plus was our go-to in our house. Like it was always on the TV. And Disney India. Disney India was always on. So like we grew up on those things, and that's why like India is close to my heart. And I actually said not all Pakistanis are gonna say it, but I love India. It is like kind of like, you know, we grew up on it. So हमारा बचपन है. So I love India. India, It's a good country. It's a good country. We know a lot of things. We share the same culture, cricket specifically. Nice people, I guess. I have been connecting with a lot of Indian people, and I think like many people do have this dilemma in Pakistan that Indian people hate us, but I have met a lot of people that are like very good with Pakistani people, and they don't think about these radical thoughts, mostly because of I guess media. Both of the sides actually hate each other, politics, etc. Yeah. But outside of Pakistan, if Indian and Pakistani meet each other, they saw desi persons. They love each other, and they share same culture, same food, and things like yes. So if you go outside from Pakistan, if you see two Pakistani and Indian, they'll call each other brothers, like they're brothers of each other. But if you're living in like Pakistan and India, then they're like we're enemies. Outside of it, it's all same. So it's like love. Love is everywhere. Also, there's one more thing. No Pakistani person is like, I don't know anyone who is working for an Indian person in India, and no Indian person is working for any person in Pakistan. But both Indian and Pakistani people are working for a foreigner person, like living in UK, living in Sweden, both are working for the same company, but both are not willing to work for each other companies inside each other. So I guess that's a very big difference, that both of these countries should resolve this kind of issues with each other. India? I mean, I have really close friends from India, and I mean, I love that country, really. Yeah, I would love to travel there to meet my friend. I've been friends with him for like 3-4 years now, and he has helped me a lot in my career and stuff. Yeah. Okay, what do you know a lot about India? Maybe some places or food? Oh, not that much. Taj Mahal, and I mean their food is similar to us. So I mean, obviously, when you go to different regions in Pakistan, they have different flavors. So I mean, I would love to go there and try the street food. Yeah. Okay. Have you ever met Indian people in Pakistan? Nah, never. I would love to, but yeah. India, I don't like India. You never traveled to India? No. बिल्कुल भी नहीं. Yeah, India is fast growing country nowadays, and I highly recommend to the politicians and everyone to resolve the matter and just open the gates for tourism. So everyone here from Pakistan can go to India, and from Indians, our brothers, can visit Pakistan. So I think there should be a way of friendship tourism between both of countries, and I think it's a good time to look into this matter. India is our brother country. It's our neighbor, a very loving country, very beautiful country. Yeah, there are political differences, but still they are our people, and they have
the same culture like us. So we don't think so. There's a lot of difference. This is what we know. I have a short history. My grandfather migrated from India when Pakistan and India got partitions. So I am basically, my grandfather was he was an Indian and he was serving in the British Indian government as well. Yeah. Okay, great. Are there many Indians in Pakistan? Yeah, there are a lot of Indian people. They like Sikh people mostly have their all religious big places like Gurdwara Sahib and Panja Sahib in near Islamabad, Taxila, pilgrim tourism की बात कर रहे हैं, near Faisalabad. There are a lot of places which like Sikh people have their religious. Like in Rawalpindi, there were a lot of Hindu families. Still, there are many Hindu temples in Rawalpindi, so we respect them and we have a lot of respect them. Karachi, so many Indians. Yeah, too many Indians in Karachi. I think I heard that temples as well, Indian temples over there as well. हिंदुओं की बात करें a little bit from our, because they're similar to us. We were one nation, so a little bit of history background. That's it. What about you? Exactly the same. Have you ever met Indian people in Pakistan? No, there aren't any Indian people here. India is our neighbor country, and I think we don't share very good terms with them, so I think we'll pass this question. Okay, fine. But have you ever met Indian people in Pakistan? No, not really. भी अच्छी लगती है चीज़ जब जो है आपको रोड साइड पर जो है बहुत एक कैंडिड टाइप जो है क्वेश्चन पूछे जाए, उनका कोई इसी तरह का जो है आपसे जवाब मांगा जाए, तो क्योंकि ये अचानक से आने वाला जो था ना एक आपके लिए सवाल जो है वो होता है, लेकिन जो है लोगों का रिस्पॉन्स है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बिल्कुल जो बीच में एक बात की गई कि भाई सारों के दिमाग जो है या सारों को सोचने का तरीका जो है वो एक जैसा नहीं होता, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से जो है वो सोच रहा होता है, तो इस वजह से हर बंदे की सोच जो है डिफरेंट होती है। लेकिन मुझे ये चीज़ से जो है ना अच्छी लगी कि मेजॉरिटी जो थी लोगों की वो जो है एक पॉजिटिव सोच है ना वो रखती है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा देखकर, और मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये चीज़ बोली कि वी शेयर द सेम कल्चर, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक टाइम तक मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी ऐसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते कि जिनकी रेडिकल सोच नहीं है, अभी भी है, लेकिन ये कि थोड़ा टाइम पीछे चले जाएं तो मुझे जब तक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं था तो मुझे लगता है तब भी ज़्यादा लोग इस तरह के थे कि जिनकी एक रेडिकल सोच होती थी, क्योंकि एक आम आदमी का इतना एक्सपोजर नहीं होता था कि वो मतलब लोगों के साथ बातचीत कर सके। अब तो मैं ये देखती हूँ कि काफ़ी लंबे अरसे से, स्पेशली जब से फेसबुक आया था उस टाइम के बाद, तो इंडियन और पाकिस्तानी आपस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्रेंड्स बने, हाँ, जिनकी अभी तक आप कह लो कि कॉन्वर्सेशंस आपस में होती हैं। इनफैक्ट एक मुझे बीच में बहुत अच्छे लगे, साहब ही बोलूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं उनका नाम क्या है, उन्होंने जो ये बात बोली ना कि मतलब जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स उन्होंने मुझे मेरे करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प की, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इंडियंस के बारे में कि वो वाकई में आपको हेल्प करते हैं और दे लॉस बहुत जेनरस हैं वो इस चीज़ में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हम लोगों को भी है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी वीडियो स्टार्ट की है, और मैं हमेशा इस चीज़ का क्रेडिट, हमारी ग्रोथ जितनी भी थोड़ी बहुत हुई है हमारी लाइफ में, मैं उसका क्रेडिट हमेशा इंडियंस को देती हूँ, हमारे सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने हर टाइम हम लोग को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं ये बात बोलती हूँ कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए उन लोगों को जो आपकी ग्रोथ में हर टाइम में आपके साथ रहते हैं, और इससे पता चलता है कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और एक और बात मुझे ये भी अच्छी लगी, जो कि बिल्कुल लास्ट में जो 2 महिलाएं आई थी, कि अगर आप किसी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मुझे लगता है कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो पास कर देना चाहिए। और उन्होंने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से बात की कि उनको बस यही पता है कि भाई हमारे अच्छे टर्म्स नहीं है, अब क्यों अच्छे टर्म्स नहीं है ये उनको नहीं पता, बजाय इसके कहने के कि भाई हमें पसंद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही, मुझे ऑनेस्टली बोलूँ तो रूड लगती है कि आप किसी भी कंट्री के बारे में डायरेक्ट ये बात बोल दो कि भाई मुझे वो कंट्री पसंद नहीं है। आप उस कंट्री के बारे में जब कुछ जानते ही नहीं है तो आप किसी के बारे में क्या बोल सकते हैं, मतलब वो कोई भी कंट्री हो सकता है। मुझे मेरी अपनी ये एक पर्सनल सोच है। असल में ना पॉलिटिकल लेवल पे आके लोगों के दिमाग जो है ना वो इस तरह के बना दिए जाते हैं ना कि लोग जो देखते हैं जो सुनते हैं उसे जो सही समझते हैं। खासतौर
पर इसे भाई जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि किसी भी कंट्री के बारे में, ये खाली मैं इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पूरी दुनिया आप काउंट कर लो कि भाई वो जिस कंट्री के बारे में जो नैरेटिव बनाना चाहती है ना वहाँ की गवर्नमेंट, वो वहाँ का जो एक मीडिया है ना वो उस चीज़ को जो है ना उसी तरह जो है ना थाली में सजा के आपके सामने जो है वो रखना जो है शुरू कर देता है। तो क्या है मेजोरिटी लोग जो है जो देखते हैं उसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं और कहते हैं हाँ भाई यही चीज़ है वो हकीकत है। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। वैसे टाइम तो तब से चेंज होना शुरू हो गया था जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं खासकर सोशल मीडिया जो है वो इन होना शुरू हुआ। और इसमें मैं कहूँगा इंडियन टीवी सीरियल्स, पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स जो हैं या इंडियन मूवीज़ जो हैं उन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। फिर अगर सोशल मीडिया जो फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये टिकटॉक आ गया या और भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने तो एक अलग तरह का जो है ना सिनेरियो क्रिएट कर दिया लोगों के बीच में, लोगों को जानने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि भाई डिफरेंसेस हैं, अभी भी हैं, जो लोगों के दिमाग का सोचने का तरीका है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो समझते हैं ना इस चीज़ को, वो जो है ना अब इस चीज़ की तरफ आना शुरू हो गए कि नहीं भाई हमें जो दिखाया जाता था, जो बताया जाता था, चीज़ें काफ़ी उससे चेंज हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वाकई में मतलब पाकिस्तानी लोग स्पेशली मैं बड़े शहरों की बात करूँगी कि लाइक हम लोगों ने अपना बचपन बॉलीवुड पे गुजारा हुआ है। हम लोगों को बॉलीवुड की मूवीज़, बॉलीवुड के सॉन्ग्स, फिर इवन के जो उन्होंने डिज्नी के बारे में बात बोली, बिल्कुल एक चैनल था, लेकिन अगर हम लोग कार्टून नेटवर्क की भी बात करें तो वो भी हिंदी में आता होता था। कार्टून नेटवर्क हिंदी में आते थे। फिर डोरेमोन की अगर बात की जाए, शिनचैन की बात की जाए, कोची कामे की बात की जाए, बहुत सारे कार्टून हैं जो कि हिंदी में जो है, डोनाल्ड डक वगैरह जो कार्टून नेटवर्क के होते थे वो भी सारे हिंदी में डब होकर आते थे। इवन अभी अगर हम लोग देखें ना तो मैं बच्चों को देखती हूँ कि हमारे घर के बच्चे सोशल मीडिया पर लाइक काफ़ी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जहाँ पर हिंदी स्टोरीज हैं, हिंदी में मतलब काफ़ी सारे कार्टून्स हैं और वो लोग देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। बिल्कुल। तो ये आपकी मेमोरीज हैं। बिल्कुल मेमोरीज है। फिर उसके बाद जो है ना जब ये हिंदी डब होकर आती थी हमें लगता था उर्दू डब है, लेकिन जो वो टाइम के साथ साथ पता चला कि नहीं भाई हिंदी डब होती है। पर मुझे लगता है अब ना एक चेंज ये भी आना चाहिए कि लोग जो जैसे उन्होंने बीच में बात की ना कि दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे के लिए काम करने के लिए विलिंग नहीं है। विलिंग तो खैर मुझे लगता है वो होते हैं बीच में, लेकिन एक पोलिटिकल आपकी कुछ रीजंस आ जाते हैं कि आप ये पॉलिटिकल लेवल पर जो आपके टर्म्स अच्छे नहीं रहते तो अपॉर्चुनिटीज़ भी फिर आपको नहीं मिलती। लेकिन ये है कि जब बाहर की दूसरे मतलब कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी, तो वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं और वहाँ पर उनको वो भाईचारा महसूस होता है। मुझे लगता है यहाँ पर भी महसूस होना चाहिए। मैंने ये चीज़ जो है खुद भी की है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में डायरेक्ट जो है ना कम करते हैं काम, लेकिन बहुत कम जो है वो आपस में जो है कम उनका जो है काम है। लेकिन मोस्टली मैंने क्या देखा है, कोई थर्ड पर्सन लाजमी, अगर इंडियन पाकिस्तानी साथ जो है ना ऑनलाइन भी काम कर रहे होंगे ना, उसमें भी किसी थर्ड पर्सन के लिए जो है वो कर रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है मैंने खुद भी ऑब्जर्व की। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म अगर बढ़ता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मिनट के लिए मान भी लें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन आ जाएंगे नहीं हमने नहीं करना, मुझे लगता है कि जैसे इन लोगों की ओपिनियन होती है कि नहीं हम लोगों ने टूरिज्म को आने देना, उस तरह से हम लोगों की ओपिनियन होती है कि नहीं नहीं होना चाहिए टूरिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अगर पाकिस्तानी इंडिया जाए, मतलब जो यूथ है वो वहाँ से बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो सीख कर आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत वहाँ पर अपडेटेड है। और अगर मैं वर्क एथिक्स की बात करूँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर जैसे हम लोग जो वर्क कल्चर हम इंडिया में देखते हैं वो बहुत डिफरेंट है, वो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान में एक बहुत ही आप कह लो कि कन्वेंशनल टाइप का अभी भी वर्क कल्चर आपको नजर आता है। कुछ फर्म्स ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें नजर आती हैं कि जहाँ पर यूथ जो है वो मतलब उनका एक अलग स्टाइल का काम है कि जैसे आपको नजर आता है कि एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस अब आपको मिलते हैं, लोग वहाँ पर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर एम्प्लॉय थोड़ा थक गया है तो जाकर वो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, बट स्टिल आई फील कि आपको बहुत सारा आपकी ट्रेनिंग जो है वो बेटर हो सकती है। और मतलब बॉर्डर
क्रॉस करके अगर आपके लिए इतनी सुविधा हो तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? यार असल में ना टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अगर टूरिज्म जो है वो होता है तो इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे मसले जो पॉलिटिकल लेवल पर हैं वो जो है वो हल हो जाएंगे। हाँ। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि जैसे मैं कहता हूँ भाई साउथ एशिया जो है ये अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया के लिए या ये क्या कहते हैं आसियान कंट्रीज जो हैं उनके लिए एक पाथवे भी जो है वो बन सकता है। बहुत सारी ट्रेडिंग रूट्स जो है यहाँ पर ओपन जो है वो हो सकता है, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों कंट्रीज, बल्कि दोनों कंट्रीज नहीं, मेरा ख्याल है साउथ एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं जिन्हें हम सार्क ममालिक कहते हैं उन सबको जो है ना अपने अंदर यूनिटी जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो फिर कहीं जाके जो है वो चीज़ें जो है ना वो एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाना शुरू होगी। तो ये जो है मैं हमेशा से जो कहता जो है वो आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ साथ हमें अपने आप को भी सही करना पड़ेगा, फिर जाकर टर्म्स जो है वो बेटर होगा। वो कहते हैं ना सबसे पहले आप अपने आप को देखें कि हम कैसे नहीं देखें। मैं वैसे एक बात कर नहीं एक बात वही मैं करने लगी, टर्म्स हमेशा दूसरों के साथ तभी अच्छे होते हैं जब आप अपने आप को जो है ना वो ठीक करना शुरू करते हैं, अपने अंदर जो आपकी खराबियां होती हैं ना उनको दूर करना शुरू करते हैं। अगर आप ये कहें ना, ये तो चले मुल्कों की बात है ना, अगर एक घर की भी बात करें ना वहाँ पे भी अगर ये चीज़ें हो ना कि एक बंदा में खराबी हो तो बाकियों के टर्म्स उससे खराब होते ही होते हैं, और वो अगर अपने आप को सही ना करे तो दूरियां क्रिएट होती ही होती हैं। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। हमारी तो बातचीत इतनी लंबी हो जाएगी इस टॉपिक पर कि हम लोग बस बोलते जाएंगे। आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, और जब आप सुनते हैं पाकिस्तानी लोगों को कि मतलब उनकी ये ओपिनियन है इंडिया के बारे में, तो मतलब आपके माइंड में क्या सोच आती है ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो गुड बाय।